ओके, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, और होगा तो फिर हम टेलमेंट आज ख़त्म कर लें, ठीक है। ये टेलमेंट आज हमारा कवर हो जाएगा फिर, ओके। बिकॉज प्रॉपर्टी मतलब क्लासेस के नेम ही है, ठीक है, जो हम ऑलरेडी सी एस एस पे कर चुके हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, है ना, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, जस्ट इनके टेलमेंट में इक्विवेलेंट नेम्स क्या है, ओके। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस। फाइन, इस सबको दोबारा से हटा देते हैं। ओके, तो एक डिव बनाते हैं, ओके, एंड इस डिव के अंदर हम एक स्पैन टैग डाल देते हैं। स्पैन होगा हमारा ओके। सो अब यहाँ पे हम डिफरेंट क्लास नेम्स डाल के ट्राई करते हैं, ओके। दिस इज स्पैन 1, दिस विल बी स्पैन 2, डिफरेंट। सो अब देखो, डिव से स्पैन पे जाते हैं, ठीक है। डिव एक कंटेनर होता था, ठीक है, एज यू माइंड रिमेंबर, ओके। डिव वॉज अ कंटेनर एंड इस पर हम मेजरली वी यूज्ड few properties like the display flex, right, the flex box, मतलब in major cases we used flex box only, ठीक है, for div like containers, okay। तो let's start with the displays, okay, like that we provided to a div, the block displays, the inline displays, flex displays, grid displays, okay। तो for setting the display, ठीक है, just simply write block, okay, and it will make it a block element, right। If we do this a block, so you see second text has been this text has been dropped down because block elements take up, as you might know, full width of the screen, right। So that's why this was block. Similarly, it will be it can be inline, okay, it can be flex, okay। Now see, the div is now a flex box, okay। मतलब what does this flex means? This flex is equivalent to this line, display flex, okay। Yes, this line is equivalent to that, ठीक है, flex, simply जो हमने flex लिखा, okay। Now after flex, I want to give a second property, ठीक है, a second CSS equivalent property, okay। तो उसके लिए what I will do, just put a space, ठीक है, because spaces in a class name, okay, tells us कि हाँ multiple class names are being used for this element, okay। So now our second class name will be flex hyphen call, okay, like there are rows, flex row is there, array, flex row is there, okay। Then row means this only, ठीक है, row is this by default, right। Then there is a flex call, ठीक है, call refers to column, now see it has become in a column, okay। Then there is row reverse, as you might remember in normal flex box we had 4 directions, right, row, column, row reverse, column reverse। Now see it is in row but in a reverse direction, okay। This learning tailwind CSS is here, then comes the learning tailwind again, CSS again, okay। Similarly, flex call reverse is also there, right। Now see, again has become on the top and this has been in the bottom, right। So yes, this was flex। Then comes the different
justify alignments, right, and align items, right, these properties that we used when we gave flex display, right. For that, just use justify between. Okay, acha, let's do this row only. If we don't give it anything, it is by default a flex row. Okay, so see, justify between, okay, justify evenly, justify around, okay, then comes what, justify end, justify start, and we'll keep it justify between. Okay, fine. Okay, then suppose I want to give some gap from left and right. Okay, a very center. Oh yes, center is also. Yes, this was center. Okay, simply justify hyphen and whatever alignment you want to give, right. Similar is with the align items. Okay, just there is a difference in that we don't use align hyphen something. Okay, we use items center. Okay, we won't see any difference here, okay, because it is vertical alignment and it is vertically already in center. Okay, center, start, end, everything is same for now. Okay, that would have matter. ठीक है, अगर इसमें इसकी जो हाइट थी वो थोड़ी सी ज़्यादा होती, ठीक है, यहाँ तक होती. अगर हम इसकी हाइट सेट करना चाहें, ठीक है, हाइट एंड विड्थ के लिए क्या होता है, h हाइफन एंड वॉट एवर हाउ मेनी पिक्सल्स यू वांट टू गिव. ठीक है, आई टोल्ड यू कि टेलविंड में 1 रिप्रेजेंट्स 4 पिक्सल, 2 रिप्रेजेंट्स 8 पिक्सल. ठीक है, मतलब ऐसे 4 के मल्टीपल में चलेगा. ओके, तो आई गिव इट 6 इंटू 4 मतलब 24 पिक्सल्स. ओके, यस, 6 इंटू 64 pixels. ठीक है, we gave it 64 pixel. Then we also want to give it a background. So for that, bg hyphen and black. Okay, black color is there. ठीक है, मतलब for color what colors are there in tailwind. ठीक है, उसके लिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो colors. See, ignore this text. ठीक है, just focus on this. There is a transparent, black, white, slate, grey. Like these are all the levels of the color. Okay, मतलब zinc 50 would be the lightest, then zinc 950 would be the greatest. Okay, and it runs in multiples of 100. Okay, 100, 200, 300, 400. Right? Neutral, stone, red, orange, amber, yellow, teal, emerald, cyan. Okay, so all these colors. अच्छा, हमने इसको black कर दिया. Background we did black. Okay, bg hyphen black. Right, the text isn't visible, right? So for text, what we'll do in normal CSS, we gave what color, right? Color column and whatever color we want to give. Here we will give text white. Okay, text has become white, and as it has some height now, we can test the items, like align items, right? This align items property, because this is vertical align, right? So item start would be on top, items end would be on last, center. Okay, this is the center, right? So instead of center, we'll give it justify between. Okay, and of course I want to give some padding from right and left. ठीक है, so what for padding, I told you yesterday also, right? For the padding we simply give p hyphen 1, for margin m hyphen 1. Okay, 1 is the level of whatever margin or ठीक है, मतलब padding हो गया. Fine. एंड सिमिलरली मतलब m एंड p जब मैंने बताया था yesterday, राइट? तो इसमें हमें दो मतलब और वेरिएंट्स मिलते हैं, राइट? मतलब p1 का क्या मतलब है, लेट्स डू इट p3. ओके, p3 रेफर्स टू तीनों तरफ से
3x4 मतलब 12 पिक्सल्स की पैडिंग मिल जाएगी. ओके. एंड बट आई ओनली वांट टू गिव इट लेफ्ट एंड राइट साइड. ओके. So for that I will do px. ठीक है. See, for padding we have many things. Normal p will do padding from everywhere. ठीक है. Then we have pt मतलब padding top, pb padding bottom, pl padding left, pr padding right. Okay. Then we have py, that is padding in vertical direction. Okay. मतलब y axis vertical direction, right? कि top पे and bottom पे एक साथ. ठीक है. py का मतलब है pt and pb को इसने मिला दिया, right? Then there is a px मतलब pl and p right. ओके. तो अभी के लिए हम px में इसको 5 दे देते हैं. यस. ओके. एंड इस मार्जिन को हटा देते हैं बिकॉज ये वाइट अच्छा नहीं होता. ओके. सो नाउ वी हैव गिवन अ पैडिंग in horizontal direction. Horizontal refers to padding left and padding right. 5x4, that is 20 pixels. Okay. 20 pixel padding from left and right. Fine. So these are the things. Okay. क्या इवनली ज़्यादा अच्छा दिखेगा. अच्छा. हाँ. इवनली जस्टिफाई इवनली. अच्छा. इवनली मैंने इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे इवनली में इतना क्या पी चाहिए मुझे. आई जस्ट वांट मतलब थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट. उसके लिए मैंने बिटवीन किया एंड पैडिंग इसलिए, राइट. सो यस, दीज वर दी बेसिकली जो हमारा फ्लेक्स में लग गया, राइट. मतलब पी एक्स वगैरह से मार्जिन को भी रिलेट कर लेना, राइट. मतलब अगर हमें मार्जिन देना हो सो व्हाट विल डू m-5 मतलब 20 पिक्सल्स, राइट. 5x4. देन वी हैव पी my. देन my 10 कर देंगे. 10 का मतलब कितना हो गया 40 पिक्सल्स. तो वाई डायरेक्शन में जो फर्स्ट स्पैन है, ठीक है, लर्निंग टेलविंड CSS, इसको हमने my10 क्लास देकर, फाइन, we gave it a my-10 class. That mean we gave a 40 pixel margin in y direction. Okay. And y direction refers to top and bottom. So what is this doing? Giving this span tag margin top and margin bottom of 40 pixels. Okay. Then we save it. Nothing happens because we have kept the height 16. ठीक है. मतलब we have constrained it to 16. If we remove that, it will increase. If we make it 16, okay. This is margin of the first text in vertical direction. Okay. Vertical means top margin and bottom margin. Okay. That same task is being done by this class. Okay. तो ये सारी चीज़ें फाइन. सिमिलरली अगर हम दूसरी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, लाइक जैसे कि हम बॉर्डर्स कर रहे थे. ओके. मार्जिन, तो मार्जिन इज डन. बैकग्राउंड भी आई गेस मैंने अभी बताया. फॉर बैकग्राउंड सपोज आई वांट टू गिव दिस वाइट अ बैकग्राउंड. लेट्स गिव दिस टेक्स्ट अ बैकग्राउंड ऑफ वाइट. ठीक है. एंड मेक दिस टेक्स्ट ब्लैक. ओके. बिकॉज अगेन वाइट में फिर वाइट नहीं दिखेगा. यस. ओके. एंड सी हमने इसके पेरेंट डिव में मतलब द div, this div, we gave it a text white property, right? So that the whatever text is inside this div will convert into white color. Okay. But we gave this a special color that is black. ठीक है. So it is prioritizing this property than its parent div. Okay. So remember this. And see, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा चिपका हुआ लग रहा है. So that is not looking very nice. So again we will give it some p1 but px3. Okay. मतलब padding in all 4 directions will be 1 into 4, that is 4 pixels. ठीक है. 1 units. ठीक है. But in horizontal direction I want 3 units padding. See. Okay. Similarly we'll do with this. अच्छा. Okay. We'll not do. अच्छा. Okay. We'll do with this text also. ठीक है. इसके साथ हम दूसरी चीज़ करते हैं.
इसके बैकग्राउंड में हम ग्रेडियंट डालेंगे. ओके, सो मैं थोड़ा सा now let's make its background of PG gradient 2. I told you whenever you want to give a background of gradient, ठीक है, तो gradient के लिए we write background, okay, hyphen instead of color, ठीक है. मतलब अगर हमें कोई कलर देना होता like this, so we would have given some color, okay, BG hyphen red or whatever, okay. Now we'll give BG hyphen gradient, ठीक है, and gradient in what direction, ठीक है, you have to mention that also. तो background gradient to right, मतलब लेफ्ट टू राइट में बैकग्राउंड का ग्रेडियंट जाएगा. ओके, नाउ खाली इससे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है. मैंने कंट्रोल एस किया बट नो चेंजेस बीइंग ऑब्जर्व हियर, राइट. तो व्हाट वी विल नीड टू डू, वी हैव डिफाइंड दैट बैकग्राउंड शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है. नाउ वी हैव टू टेल, मतलब एक्सप्लेन इट कि हाँ लेफ्ट साइड मतलब टू राइट डायरेक्शन में जाना है, राइट. तो लेफ्ट साइड में कौन सा कलर होगा एंड लेफ्ट से हम राइट में जाते हुए कौन सा कलर हम अप्रोच कर रहे हैं. ओके, तो फॉर दैट वी विल गिव इट फ्रॉम ब्लैक या फिर फ्रॉम ग्रे हाइफन 500, ओके, टू वाइट. यस, एंड because text isn't visible, okay, again we'll give it first P1 and PX3, okay, and the text isn't visible at the last, okay, just learning is visible. So उसके लिए what we'll do, text black. Yes, it's visible now, okay. We'll give it font. अच्छा, if I want to increase the font weight, what I'll do, font hyphen, I told you there were multiple levels, right? Thin, light, medium, then 7 volt, bold, extra bold, okay. If you want to see that on Tailwind website, it would be there, okay. Typography, so you can click on this. See all these, thin, extra thin, sorry, extra light, then light, normal, medium, semi bold, and this one, ठीक है. अच्छा, दैट ऑल्सो डिपेंड्स, मतलब आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि फॉन्ट वेट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द फॉन्ट बीइंग यूज्ड, राइट. मतलब हो सकता है ये फॉन्ट सपोर्ट करता है 600 वेट या 500 वेट, ये नहीं करता होगा, ठीक है, ऐसे चांसेस हैं. तो उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है काम ना भी करें, लाइक फॉन्ट मीडियम, आई डोंट नो इट वुड वर्क ऑन, यस इट इज वर्क, यू माइट बी एबल टू सी, मतलब इससे थोड़ा सा थिक है, राइट. मैं एक्स्ट्रा बोल्ड भी कर दूँ तो भी वोंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज ये सपोर्ट ही नहीं करता, ऐसा करता है. अच्छा, नाउ इंस्टेड ऑफ फ्रॉम ग्रे आई वांट क्या, फ्रॉम क्या टू नॉट वाइट टू पिंक 400. And plus I also want to increase its, अच्छा let's make this class is also aligned. Then we can give it text black. We were about to increase the font size, okay, because it is not visible in the Google Meet, I guess. Okay, so for that what we'll do, text, right, see, text हम दो चीज़ों के लिए करते हैं, like text hyphen, we can give it a color, okay, pink, pink level भी choose करना, pink 500, okay, and other than color we can also give it a size, okay, text hyphen, and there are multiple levels of sizes, ठीक है, that you can easily find on Tailwind website, right. मतलब its size varies from XS means extra small, then small, ठीक है, SM, then base, ठीक है, मतलब that is the normal size, then comes the LG large, XL, 2XL, 3XL, 4XL up to 9XL,
ओके, मतलब यू कैन सी वी saw that yesterday also. ठीक है, तो instead we'll just yes 2XL is fine. ठीक है, बिना कलर के आगे नंबर असाइन किए, बिना कलर के आगे नंबर असाइन किए कलर नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा बिकॉज जब हम रिएक्ट करेंगे ना, ये चीज़ वैसे हमें तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे, बिकॉज कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पे मेरे पास. मैं दिखाता हूँ कलर, इनका जो कलर, जो एग्जिस्टिंग कलर्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वाइट है, ब्लैक है, टेक्स्ट स्लेट, ये सब 100 से लेकर यहाँ तक 950, राइट. तो इन्होंने नॉर्मल स्लेट जो है, मतलब टेक्स्ट हाइफन स्लेट को डिफाइन ही नहीं किया अपने CSS फाइल में, तो इसलिए वो नहीं लेगा. इन्होंने मोस्टली कलर्स को ऐसे ही दिया 50, 100 मतलब न्यूमरल्स में, राइट. तो ये चीज़ है. नॉर्मल मतलब नॉर्मल करना है तो बस हाइफन 500 लगा दो, बिकॉज हाइफन 500 जो है ये नॉर्मल कलर ही होता है, राइट. बट नॉर्मली इन्होंने टेक्स्ट हाइफन स्लेट नहीं दिया. जब हम रिएक्ट जेएस में करेंगे ना, तब हम अपने कलर्स वगैरह सब डिफाइन कर पाएंगे. मतलब टेलविंड को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर देंगे. जैसे कि अभी P1 लिख रहे हैं, राइट. तो P1 का क्या मतलब है, मैंने अभी बताया. 1 का मतलब है 4 पिक्सल, राइट. तो 1 का मतलब 4 पिक्सल है, बिकॉज इन्होंने टेलविंड वालों ने, जिन्होंने टेलविंड को डेवलप किया है, उनका मन था 4 पिक्सल रखने, ठीक है. बट हमारा मन है कि नहीं, मैं 2 पिक्सल रखूँगा 1 यूनिट, ठीक है. तो हम उसको कस्टमाइज़ कर पाएंगे, ठीक है, जो टेलविंड की सोर्स फाइल है, राइट. सिमिलरली हम अपने कलर्स डिफाइन कर पाएंगे, हम अपने फॉन्ट फैमिलीज़ ला पाएंगे, ठीक है. हम अपने फॉन्ट वेट्स, मतलब हर चीज़ हम अपना बना पाएंगे, ओके. अपनी एनिमेशन हम टेलविंड में डाल सकते हैं, राइट. ग्रेडियंट्स हो गया, कलर्स हो गया, सब कुछ, मतलब पूरा हम खुद को कस्टमाइज़ कर लेंगे. वो बेस्ट चीज़ है. रिएक्ट और टेलविंड का कॉम्बिनेशन इसलिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है. सो हम ये चीज़ कर लेते हैं. इसकी पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं. पैडिंग 2 एंड px विल बी 4, ठीक है. नाउ एक्स्ट्रा बोर्ड, अच्छा, वी डू द ब्लैक. ओके, इसको 3x से ट्राई करते हैं, ठीक है. आई एम डूइंग इट 3x, चलो कोई नहीं, 2x, ठीक है. नाउ वाई आई एम, चलो ठीक है, इतना हमें समझ आ गया, ओके. वी गेव इट अ बैकग्राउंड, दिस एंड ऑल, ठीक है. नाउ हमने एक चीज़ करी थी स्टार्टिंग में, टेक्स्ट को हमने कुछ अपना ट्रिक वगैरह लगा के टेक्स्ट को ग्रेडियंट दिया था, राइट. बिकॉज यू माइट रिमेंबर there wasn't any pre-existing property in CSS, ठीक है, to give text a gradient color, right. So what we did, we gave the text a background of gradient just like this. Then we made the text color transparent, ठीक है. तो ट्रांसपेरेंट करने से क्या होगा, इनके कलर में ये ग्रेडियंट दिखेगा, राइट. एंड व्हाट वी डिड, बैकग्राउंड को हमने क्रॉप कर दिया था, राइट. बैकग्राउंड की हमने कोई प्रॉपर्टी यूज़ करी थी क्लिप करके, एंड उससे हमने बैकग्राउंड क्रॉप कर दिया था टेक्स्ट पे, मतलब यू माइट रिमेंबर, राइट. टेक्स्ट की जो, ये टेक्स्ट का जो बॉर्डर है, मतलब एल का जो ये बॉर्डर दिख रहा होगा आपको, राइट. ये बॉर्डर हो गया, ई का जो बॉर्डर हो गया, ए का जो बॉर्डर हो गया, इन बॉर्डर्स पे हमने क्रॉप कर दिया था बैकग्राउंड को. तो ये जो बैकग्राउंड है इतना बड़ा, ये सब क्रॉप हो गया था जस्ट इस फॉन्ट के पीछे ही हमारा बैकग्राउंड, राइट. तो उससे हमारा ग्रेडियंट आ गया था. वही सेम चीज़ हम यहाँ टेलविंड में भी करेंगे, ओके. सो टेलविंड में वो कैसे करेंगे, हमने बैकग्राउंड तो ऑलरेडी दे दिया है, राइट. तो अब एक काम करते हैं, पैडिंग हटा देते हैं. मतलब पैडिंग रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट पैडिंग इज़ नॉट नीडेड, ठीक है. अब देखते हैं, हाँ ठीक है. So now background is done with these lines, okay, from this color to this color, and background should be gradient towards right, ठीक है. अगर we did is it towards left, तो कलर देखो इन्वर्ट होगा, राइट. अगर हम इसको टॉप कर दें तो कलर टॉप टू बॉटम हो जाएगा, राइट. ऊपर से पिंक है. इसमें एक और है, TL कर दो, ओके. दैट मीन्स टू टॉप लेफ्ट, मतलब इस साइड. नाउ सी, पिंक इस एरिया में पिंक आ गया एंड इस एरिया में ब्लू आ गया, राइट. तो एक सबसे बढ़िया आ रही था हमारा राइट साइड, ओके.
Now what we'll do, we'll first make the text transparent. Okay, हमारा text जो है वो transparent हो गया. Then we had bg let text, is that something? Yes. अगर ये चीज़ याद नहीं भी आती तो भी हम यहाँ पे नॉर्मली सर्च कर लेते हैं. ओके, बैकग्राउंड क्रॉपिंग टू टेक्स्ट, ये रहा बीजी क्लिप टेक्स्ट. ओके, मतलब बैकग्राउंड को क्लिप कर देना टेक्स्ट को. ओके, एंड ये हमारा क्लिप हो चुका है. राइट, सो दिस इज द थिंग. अच्छा, ग्रेडियंट में एक और चीज़ है, फ्रॉम ये कलर टू दिस कलर, बीच में भी हम कोई कलर डाल सकते हैं. फ्रॉम टू के बीच, दैट विल बी थ्रू वाया ब्लैक. नाउ सी, सॉरी, वाया ब्लैक तो नहीं दिखेगा, वाइट. यस, तो फ्रॉम ज्ञान 500 टू वाइट, देन टू पिंक. राइट, सो दिस इज द थिंग. ओके, क्लिप टेक्स्ट का वापस समझाइए प्लीज़. अच्छा, क्लिप टेक्स्ट का ये नॉर्मल प्रॉपर्टी याद होगी ना, मतलब हमने नॉर्मल सीएसएस में भी किया था, और शायद तुम थे मोस्ट प्रॉब्ली. हाँ तुम थे, याद है मुझे. ठीक है, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ पे करते हैं. मतलब ये पहले तो हमने बैकग्राउंड डिफाइन कर दिया. ठीक है, बैकग्राउंड तो चलो हो गया. राइट, उसके बाद हमने टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट कर दिया. देन हमने बैकग्राउंड को क्रॉप कर दिया टेक्स्ट पे. ठीक है, जैसा कि हमने सेम टू सेम सीएसएस में किया था. राइट, एंड उसके लिए ये प्रॉपर्टी थी बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट. ठीक है, मतलब बैकग्राउंड को क्लिप कर देंगे टेक्स्ट का जो भी बॉर्डर है. राइट, और चलो अगर ये चीज़ याद नहीं भी आती, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे खुद याद इतना नहीं आ रहा था. राइट, तो अभी तो चलो मतलब मैंने लिख दिया और काम कर गया. नहीं करता तो मैं यहाँ से देखता हूँ. राइट, सिंपली कि बैकग्राउंड मुझे क्रॉप करना है. ओके, तो बैकग्राउंड क्रॉप, और ये आ गया बैकग्राउंड. ठीक है, बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट. ओके, ओ कितना सिंपल. हाँ वही तो, सिंपल बहुत ज़्यादा होगा. राइट, सो और इनकी सर्च फंक्शनलिटी मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है. अब जैसे बीजी क्लिप टेक्स्ट है. राइट, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं क्लिप ही सर्च करूँगा तो आएगा, या बीजी ऐसा कुछ करूँगा तो. राइट, इनके मोस्टली कीवर्ड्स मतलब अब देखो बैकड्रॉप या कुछ भी, मैंने जो नॉर्मली सर्च किया था बैकग्राउंड क्रॉपिंग, ठीक है, उसको भी आ जाता है. तो थोड़ा बहुत इधर उधर के कीवर्ड्स भी डालोगे तो याद है, सजेशन दे देगा, सजेशन दे देगा. मेरा फ़ोन दिख रहा था. ओके, सो ठीक है, ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ करी. देन हमारा यस राइट, हमने अभी तक बॉर्डर नहीं किया, तो इसको दोबारा से हम वाया ब्लैक कर देते हैं. इसको बैकग्राउंड हम दोबारा वाइट कर देते हैं, एंड टेक्स्ट को हम कर देते हैं ब्लैक. ठीक है, ये चलो वाया अच्छा ही लगेगा. थोड़ा डार्क कर देते हैं 7. ओके, ठीक है, तो अब हम बॉर्डर्स वगैरह देख लेते हैं. राइट, बॉर्डर भी हम इसका देखते हैं. नाउ लेट्स गिव इट अ बॉर्डर. ठीक है, बॉर्डर के लिए सिंपली बॉर्डर लिख दो. ओके, एंड बॉर्डर का कलर बॉर्डर ब्लैक, दैट्स इट. ठीक है, गूगल मीट में शायद अजीब सा दिख रहा है. नहीं, ठीक है, ठीक है. तो व्हाट डज बॉर्डर डिड, बॉर्डर ने 1 पिक्सल का बॉर्डर दे दिया. अगर हमें ज़्यादा करना है तो -2 -3. ओके, 3 करेंगे. अच्छा 3 नहीं होता, मल्टीपल्स ऑफ 2 में होता है बॉर्डर 4.
Okay, 4 will refer to 4 into 4, that is 16 pixels most probably. 2 means ये सजेशन भी नहीं दे रहा है. तो रिएक्ट जेएस में तो एक्सटेंशन है मतलब ऑलरेडी एक, वो एक्सटेंशन से सारे सजेशन आ जाते हैं टेलविंड के. ये नहीं दे रहा, कोई नहीं. तो सी 2 मोस्ट प्रॉब्ली इज 2 पिक्सल. अच्छा ठीक है, याद नहीं भी आ रहा तो यहाँ से देख लेते हैं. स्केल स्केल ऐसा नहीं. हाँ, बॉर्डर 2 मीन्स इज 2 पिक्सल, 4 मीन्स 4 पिक्सल, ओके, 8 मीन्स 8 पिक्सल, एंड बॉर्डर मीन्स सी. बॉर्डर में भी हम ऐसा दे सकते हैं स्पेसिफिकली एक्स डायरेक्शन के लिए मुझे बॉर्डर देना है, मतलब लेफ्ट एंड राइट. राइट बाय मतलब टॉप एंड बॉटम ही देना है मुझे. राइट ठीक है. एस एंड ये सारी, ये अगर हमें स्पेशली अगर किसी को फिर से देना है. राइट मतलब जैसे कि ये बॉर्डर हो गया, बॉर्डर S2. ठीक है. तो सी बॉर्डर मतलब स्टार्टिंग वाला जो बॉर्डर है ये चीज़ ठीक हो गई. या इसको मैं 6 कर दूँ, मतलब 6 नहीं होता 8 होता है. स्टार्टिंग का बॉर्डर ज़्यादा हो गया. राइट. या फिर हम इसको एंड का भी कर सकते हैं. एंड का भी स्टार्टिंग का ठीक रहेगा सर. राइट. इसी में हम बॉर्डर याद होगा, हम बॉर्डर में एक और चीज़ करते थे, बॉर्डर स्टाइल भी हम अलग अलग कर सकते हैं. लाइक बॉर्डर उसको आप डॉटेड करेंगे अगर तो शायद काम कर जाएगा. येस वी आर कमिंग ऑन रेडियस. सी बॉर्डर डॉटेड, वी हैव आल्सो हैड डैश्ड बॉर्डर डैश्ड. यस सी डैश बॉर्डर है. ये लेफ्ट साइड का भी 2 बॉर्डर आया. ओके. तो चलो डैश नहीं, हमारा सॉलिड ही ठीक है. ओके. ये सॉलिड लिखने की ज़रूरत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड ही रहता है. तो ये राइट. देन वी हैड बॉर्डर रेडियस ऑल्सो. तो बॉर्डर रेडियस के लिए रेडियस वगैरह नहीं डालना है, इसमें राउंडेड होता है. राइट मतलब राउंडेड, किसी चीज़ को कितना राउंडेड करना है. ओके. वी हैव लेवल्स ऑफ राउंडेड इन टर्म्स ऑफ मतलब 1 2 3 में नहीं होती है. ठीक है. राउंडेड है स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल. ठीक है. फुल रेफर्स टू मतलब पूरा सर्कल बना देगा. ओके. या फिर नॉर्मल CSS में जो 100% होता है. ठीक है. 100% रेफर्स टू फुल है. तो राउंडेड SM या LG करें. LG कितना होगा देख लो. ओके. पिल है इसमें, पिल नहीं समझा मैं. पिल अरे फिल, राउंडेड फिल है वो, और फिल भी नहीं, फुल है वो. नहीं पिल नहीं, राउंडेड पिल नहीं है. पिल करेंगे तो नहीं, पिल जैसा कुछ नहीं है. अच्छा बूटस्ट्रैप में उसका क्या काम है? बूटस्ट्रैप में इसमें राउंडेड फुल है, गोली के जैसे दिखता है. अरे तो ये गोली की तरह ये भी नहीं हो गया राउंडेड फुल? हाँ ये भी. अच्छा हाँ, तो शायद फुल का काम फिल करता होगा. राइट. तो ठीक है, सही लग रहा है वैसे. तो इसको 4 ही कर दो. बॉर्डर X दोनों साइड. फाइन. देन वी हैड राउंडेड फुल. अच्छा ठीक है. इसी से एक और चीज़ भी याद आ गई. जैसे कि मैंने राउंडेड में अलग अलग लेवल्स होते हैं. राइट. राउंडेड स्मॉल इज़ देयर, तो यू माइट बी एबल टू, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल रेडियस है. राइट. अगर मैं इसको हटा दूँ, सी ये बिल्कुल शार्प है, बट एक बहुत माइनर सा डिफरेंस है यहाँ. ठीक है. जूम करूँगा तो शायद दिखे. ये देखो हल्का सा रेडियस. ठीक है. तो ये कई जगह काम आता है. राइट. देन आफ्टर SM वी हैव सिंपल राउंडेड आई गेस. ठीक है. तो नॉर्मल राउंडेड रेफर्स टू 4 पिक्सल बॉर्डर रेडियस. ओके. 4 पिक्सल और 2 पिक्सल. आई एम नॉट रिमेंबरिंग दैट. rounded refers to
डिफ़ॉल्ट, हाँ 4 पिक्सल, डिफ़ॉल्ट इज़ 4 पिक्सल। ओके ठीक है, तो दिस वॉज द राउंड, मतलब बॉर्डर रेडियस जो होता है वो यहाँ पे बस थोड़ा अलग नाम है, राउंडेड करके। ओके कि कितना राउंड करता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ठीक है, 2 एक्सेल या फुल। ओके तो ये हमारा बॉर्डर रेडियस हो गया। देन वी हैड सम स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक दिस, प्लीज मिनिमम हाइट, जेड इंडेक्स, राइट। इन सबको कैसे लेंगे आप, मिनिमम हाइट में एच वॉट एवर, ठीक है, लाइक 64 और फिट, ठीक है। यू माइट रिमेंबर देयर वॉज हाइट, इन नॉर्मल CSS वी ऑल्सो हैड these things like height, these 4 things, like auto is the default, fit content means कि जितने में भी कंटेंट उसका फिट हो जाए, राइट, उससे ज़्यादा ना हो। देन मैक्स कंटेंट, मतलब कंटेंट उसका मैक्सिमम कितनी हाइट ले सकता है, ठीक है, अपने कंटेंट को स्ट्रेच कर करके, या फिर मिनिमम कंटेंट अपने इस कंटेंट को स्क्वीज़ करके वो कितनी हाइट कम से कम ले सकता है। ओके दीज थिंग्स, एंड आई ऑल्सो टोल्ड कि ये these 4 things are not similar to this thing, लाइक मिनिमम हाइट, ये चीज़ डिफरेंस है। मिनिमम हाइट हमें क्या कह रहा है कि इस चीज़ की मिनिमम हाइट इतनी होनी चाहिए जितना कि सपोज दिस, इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मिनिमम हाइट जो है वो होना चाहिए मैक्स कंटेंट जितना, मतलब कंटेंट जितनी मैक्सिमम हाइट ले सकता है वो उसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। मतलब आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। इट्स मिनिमम हाइट शुड बी एट लीस्ट इतना कि मैक्सिमम कंटेंट जितना होगा। ओके तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, ये हम यहाँ पे कैसे कर रहे थे, मिनिमम हाइट एंड मैक्स, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कहीं कहीं जगह लगता है। आई गेस जब हम पहला अपना index.html बना रहे थे, जिसमें हमने नीचे वीडियोस डाली थी और यहाँ पे एक स्क्रॉल, एक सब सेक्शन था जिसमें स्क्रॉल बार था, उसमें शायद ये काम आ रहा था, मिनिमम हाइट या मिनिमम विड्थ करके कुछ काम आ रहा था, राइट। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी हो गई। अदरवाइज जेड इंडेक्स कैसे हम करते हैं, देखो जेड हाइफन और वट एवर इंडेक्स यू वांट होगी, ठीक है। इंडेक्स आप देख सकते हो इनका लेवल क्या क्या है, ठीक है। इनका लेवल मेजॉरिटी उसमें होता है 10, 20, 30, 40, ठीक है। Z0, Z10, 20, 30, 40, 50 एंड ऑल, ओके ठीक है। अभी इसी में मैं चलो पहले एक बार Z बता देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है। तो Z इंडेक्स हम ऐसे सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, Z50 विल बी द मैक्स, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ देखते हैं, 50 जो मैं चीज़ें बताई 10, 20, 30, 40, 50, दैन ये 4, ये 1, ये 16, ये सारे नंबर्स इसमें बाय डिफ़ॉल्ट मतलब इनबिल्ट है, राइट। एंड जैसा कि मैंने बताया, अगर हमें अपने कस्टम ये चीज़ें बिल्ड करनी है, ठीक है, मतलब हमें इसको कस्टमाइज़ करना है, ठीक है, इनकी यूनिट्स को या फिर वैल्यूज़ को अलग अलग, ठीक है, अपने कलर्स डालने हैं, तो उन सब वो सारे काम रिएक्ट में ईजी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्ट ना हो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन है। सपोज जेड इंडेक्स मुझे 50, 10, 20, 50, 30 ये वैल्यूज़ इसने खुद दी हुई है, राइट। पैडिंग जो है ये 1, ये इसने खुद दिया हुआ है, बट मुझे अपना कुछ पिक्सल्स में देना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, इसको हटाऊँगा, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी नॉर्मल CSS में वैल्यू होती है वो डाल दूँगा, लाइक 18 पिक्सल, ओके। तो अब वो 18 पिक्सल हो जाएगा, हो गया पैडिंग 18 पिक्सल। मैं इसको 28 कर देता हूँ टू बी सिग्निफिकेंटली विजिबल, राइट। पैडिंग X, इसको मैं 36 पिक्सल दे दूँगा, सी, राइट। अच्छा अब सी, एक चीज़ देखना, यहाँ पे अभी हमारा मिनिमम विड्थ काम आएगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो चीज़ समझ आ गई, लाइक अगर हमें अपनी वैल्यू को यूज़ करनी है, ठीक है, तो बस स्क्वायर ब्रैकेट डाल दो उसकी जगह जो भी इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। लाइक सपोज बॉर्डर ब्लैक है, ठीक है, मुझे ब्लैक नहीं देना, अपना कोई कलर देना है, बट जैसा कि अभी हमने देखा हम ब्लू डाल देंगे तो ब्लू कलर नहीं है इसमें, क्योंकि ब्लू मोस्ट प्रॉब्ली ब्लू -500 कुछ वैल्यू होगी, सी है ना, बट मुझे ब्लू ही डालना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी वैल्यू होती है, ठीक है, लाइक ब्लू की हेक्स वैल्यू होती है RG
बी सॉरी, ठीक है। ये हमने कस्टम कलर दे दिया इसको, राइट। यहाँ पे RGB भी डाल सकते हो या वॉटेवर, ठीक है। सिमिलरली ये जेड इंडेक्स, यहाँ पे भी हम स्क्वायर ब्रैकेट में कुछ भी अपनी कस्टम वैल्यू दे देंगे, 1 लाख, ओके। अब इसका जेड इंडेक्स जो होगा वो 1 लाख होगा इसका, ओके। ऐसे करके हम कस्टम वैल्यूज़ दे सकते हैं ताकि हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए। इसको चेंज करते हैं, पहले ब्लैक था ये, इसको भी पहले था ये 3, ओके। इसको भी 1 कर देते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमारा कस्टम वैल्यूज़ हो गए कह सकते हो, ठीक है। देन आई वाज अबाउट टू टेल यू समथिंग, एक सेकंड, मेरे दिमाग से निकल गया, कुछ बताने वाला था मैं। border is black, rounded, that was about 2 done, मैंने Z इंडेक्स दिया था, बॉर्डर दिया था कस्टम, हाइट का हाँ सही कह रहे हो, यस। अभी रुको, इसको दोबारा से पैडिंग देनी पड़ेगी, 24 पिक्सल्स, देन 36 पिक्सल्स, यस, ठीक है। अब देखो, हमने इसको ये पैडिंग दे दी, तो इसका कंटेंट देखो, लर्निंग टेलविड CSS है, राइट। ये चीज़ ऊपर नीचे हो गया बिकॉज हमने इसको पैडिंग दे दी है ना। तो अब ये इसके लेफ्ट राइट साइड में भी कंटेंट है, इसको भी रखना है, इसको भी रखना है, तो इसने थोड़ा सा कंटेंट को स्क्वीज़ कर दिया अंदर के, राइट। ये लर्निंग के नीचे टेलविड CSS आ गया। तो अब यहाँ पे हम वो जो हमारा मिनिमम हाइट मिनिमम विड्थ वाली चीज़ थी, वो चीज़ काम आ जाएगी। क्या करेंगे हम, मिनिमम विड्थ मैक्स, ठीक है। मतलब मिनिमम विड्थ जो होनी चाहिए इस कंटेंट की, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम ही जितना ले सकता है उतनी इसकी मिनिमम होनी ही चाहिए, ठीक है। अगर मैंने इसको विड्थ मैक्स कर दिया, ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज ये विड्थ मैक्स है, मतलब विड्थ तो उसकी ऑलरेडी मैक्स थी, ठीक है। बट मिनिमम हमने इसका कुछ सेट नहीं किया, तो ये मिनिमम कितना भी स्क्वीज़ आउट कर सकता है, ठीक है। हमने कुछ डिफाइन नहीं किया कि मिनिमम इतना तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम विड्थ शुड बी मैक्स, मतलब मैक्सिमम कंटेंट जितना होता है। तो नाउ सी, ये हो गया हमारा मैक्स। अब इसको मतलब मिनिमम विड्थ जो है इसकी, उसको मैक्सिमम करने के लिए चाहे राइट वाले कंटेंट को छोटा करना पड़े या स्क्वीज़ करना पड़े या फिर नेक्स्ट लाइन में ले जाना पड़े, ठीक है, कुछ भी हो, ये लेगा ही उतनी विड्थ, ठीक है। यहाँ पे हम अपनी कस्टम वैल्यू भी डाल सकते हैं, मैक्स की जगह 50 व्यू विड्थ, तो आधी स्क्रीन जितनी ये विड्थ ले लेगा, ओके। 100 डाल देते हैं तो पूरी स्क्रीन ले लेगा, ओके। हाँ, एंड यस, जो टेलविंड की जो मेजरमेंट यूनिट्स होती है, ठीक है, जो अभी मैंने 1 2 3 4 5 बताई, ये सब हमारा यस, इसमें एक दो और चीज़ें थी, जैसे कि स्क्रीन, लाइक मिन विड्थ स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब यहाँ पे 100 व्यू विड्थ ही है, ठीक है। जो 100 VW होता है वो स्क्रीन होता है। सिमिलरली अगर हम इसको एच स्क्रीन कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा हाइट जो है वो 100 व्यू एच हो जाए, ठीक है, VH, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, सी हाइट जो है इसकी स्क्रीन जितनी होगी, ठीक है। अगर किसी को डाउट हो कि ये जो स्क्रीन के बाहर क्यों जा रहा है, राइट, ये स्क्रीन के नीचे जा रहा है ना, बट स्क्रीन के नीचे ये इसलिए जा रहा है बिकॉज आई होप समझ आ रहा होगा, बिकॉज ये ऊपर जो गैप दे रखा है, इसकी हाइट इसने स्क्रीन जितनी ही ली है, बट हमने क्योंकि इसको गैप दिया हुआ है तो ये स्क्रीन के बाहर जा रहा है, ओके। मार्जिन दिया है, हाँ राइट, मार्जिन इसको हमने ऊपर से दे रखा है, इसलिए ये राइट में भी बाहर आउट ऑफ द पेज इसलिए जा रहा था बिकॉज हमने इसको लेफ्ट में भी मार्जिन दिया रखा है, राइट। तो ये कहानी है,
ओके, तो ये सारी हमारी नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ हो गई। ओके, बैकग्राउंड हो गया, टेक्स्ट हो गया, पैडिंग, मार्जिन, जेड इंडेक्स, हाइट, स्क्रीन, ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, जो भी हम नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ अभी तक हम देख रहे थे CSS में। ठीक है, बचने को अब जो स्पेशल चीज़ें थी, अगेन जैसा हमने CSS में हमारी लास्ट में चीज़ें रह गई वैसी चीज़ें यहाँ रह गई। ठीक है, जैसे कि ट्रांजिशंस हो गए, एनिमेशंस हो गया, मीडिया क्वेरीज हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें बच रही हैं। आई थॉट कि शायद आज की क्लास में हो जाएगा, बट अभी कराने भी बैठा तो 8:30 एटलीस्ट होंगे, उससे भी आगे खिंच जाएगा। नेक्स्ट क्लास में देखना पड़ेगा। अभी इतने में बताओ एक बार, जितना अभी हमने आज किया टेलमेंट की क्लासेस, इसमें किसी को डाउट हो, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का? मज़ा आया आज, बहुत बढ़िया, मज़ा तो आना चाहिए। ठीक है, टेलमेंट काफ़ी सही है। अगेन मैं ये लाइन 10 बार बोल चुका हूँ, जब रिएक्ट के साथ करेंगे तो मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा फास्ट कोड हो जाता है। खैर फास्ट इसी से हो जाएगा, मतलब अभी तो हम इतना टाइम लगा रहे थे, राइट? देखो, अगर मुझे एक नया स्पैन लाना है, पहले इसका इतना बड़ा हाइट हटा देते हैं। मुझे सिंपली एक कोई स्पैन लाना होगा तो मैं यहीं पे, जैसे मैंने VS कोड का बताया था, समझा सब बहुत बढ़िया था। मैंने इस VS कोड का एक चीज़ बताया था, स्पैन या कोई भी टैग का नाम और डॉट, और जो भी नाम डालोगे वो चीज़ इसकी क्लास हो जाएगी। कोई हैश टैग डालोगे वो चीज़ इसकी ID हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, स्पैन डॉट टेक्स्ट हाइफन ब्लैक, अगेन डॉट, मतलब दूसरी क्लास देनी है मुझे, तो BG पिंक 500, देन पैडिंग 1, ठीक है, देन PX3, देन वॉट एवर, और क्या बचा? हाँ, इतनी काफ़ी है। अब इसी को एंटर कर देंगे, आईडी हमारी क्लास बन जाएगी। अब हमें कुछ नहीं करना, ABC टेक्स्ट डाल दो, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ फास्ट, राइट? और जब आपको ये क्लासेस याद होने लग जाएंगी ना, तो याद हो गई तो फिर बिल्कुल नॉर्मल CSS तो फिर आप टच भी नहीं करोगे। मतलब मैं तुम्हें सही बताऊँ तो ये अभी मैं बस पढ़ाने के लिए मैंने ये नॉर्मल CSS करी, कम से कम 2-3 महीने बाद। ये भी मैं कम किया, 4-5 महीने बाद किया होगी। आखिरी CSS मैंने किसी न किसी ज़रूरत की वजह से की होगी, अदरवाइज़ मैं CSS बिल्कुल अब करता ही नहीं, मतलब फुल इग्नोरेंट हो गया। साक्षी, हाँ हामिद, इट्स लाइक AMD एंड इंटेल। अच्छा संकल्प, थोड़ा बूटस्ट्रैप जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, बूटस्ट्रैप जैसा है ही, मतलब काम तो दोनों का सेम ही है ना ये, इस वजह से AMD और इंटेल, सही बात है। मतलब दोनों राइवल्स हैं एक दूसरे के, ठीक है, और उन राइवल्स में से टेलमेंट मुझे ज़्यादा पसंद है, आई गेस। मतलब टेलमेंट सभी को पसंद है वैसे, क्योंकि बूटस्ट्रैप जो है वो शायद इजी है। बूटस्ट्रैप में देखो ये ज़्यादा सही चीज़ है कि कहाँ गया, उसमें कंपोनेंट्स हमें मिल जाते हैं, बूटस्ट्रैप कंपोनेंट, और बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स ही ज़्यादा फेमस है, जिस वजह से वो इतना चला है। वरना इसके नॉर्मल क्लासेस अगर ये खाली होती है ना, तो इतना ज़्यादा फेमस नहीं होता कंपोनेंट्स, ये तो आइकन है इसका, क्योंकि इसकी नॉर्मल, मतलब ये देखो इस कितना ज़्यादा कॉमन है, ये हर जगह आपको यही चीज़ दिखेगी। इसका नैप बार जो होता है वो भी सेम होता है, सब चीज़ें सेम होती हैं, और ये इतना ज़्यादा कस्टमाइजेबल भी नहीं है। जैसा भी मैंने टेलमेंट बताया था, टेलमेंट तो चलो अभी हम उसमें ईजी लगता है सब दिखने में, बूटस्ट्रैप में हाँ बूटस्ट्रैप ईजी है, मतलब मैंने बताया ना, कॉम्प्लेक्स टेलमेंट ज़्यादा है, ये मैं एग्री करूँगा, ठीक है। और कंपैरेटिवली मतलब इतना भी ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट बूटस्ट्रैप से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट उसमें हमें फ़ीचर भी ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। मैं ये श्योर हो सकता है, मतलब इसमें शायद सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी CSS की बूटस्ट्रैप में, बट शायद एक कस्टमाइजेबिलिटी वाली चीज़ नहीं है। जब भी मैंने बताया ना, अभी तो हमने HTML में यूज़ किया, इसलिए हमने कस्टमाइज़ नहीं किया, अदरवाइज़ मैं इसका रिएक्ट में कस्टमाइजेशन बहुत यूज़ करता हूँ।
जैसे अपनी कोई फ़ॉन्ट फैमिली मैंने गूगल से डाउनलोड करी, ठीक है, कोई फ़ॉन्ट है जैसे कि मॉन्टसेराट वगैरह हो गया, डाउनलोड किया और वो चीज़ मैं टेलविंड में डाल देता हूँ। फिर मैं अपने कलर्स भी डाल देता हूँ, ठीक है, कि हाँ पूरे वेबसाइट में मैं एक पर्पल कलर यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं एक प्राइमरी नाम का कलर डाल दूँगा कि प्राइमरी कलर, और वो चीज़ पर्पल होगा, ठीक है, पर्पल का कोई कोड होगा। अब मुझे जहाँ जहाँ भी पूरे वेबसाइट में अपना जो मेन कलर है वो डालना है, तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी, और वो चीज़ उसको कलर दे देगी, राइट। फिर मैं एक मतलब वेबसाइट का एक कोई भी वेबसाइट जब हम बनाते हैं तो एक थीम पैलेट लेके चल लेते हैं ना, कि प्राइमरी कलर होगा इसका कुछ पर्पल, फिर एक सेकेंडरी कलर होगा लाइट पर्पल टाइप का, ठीक है, जो कहीं कहीं भी यूज़ होगा। फिर एक कलर होगा जो एक्सेंट कलर होता है, जो बहुत रेयरली कहीं यूज़ होता है, जैसे आइकन्स वगैरह में हो गया। तो ये 3-4 पैलेट उसमें बना लेंगे हम, और उसी को हम यूज़ करते रहेंगे। टेक्स्ट पैलेट है, पीछे हमने सेकेंडरी दे दिया, राइट, ऐसे करके। ये कस्टमाइजेबिलिटी उसमें नहीं है बूटस्ट्रैप में, और इसी वजह से बूटस्ट्रैप जो होता है, बूटस्ट्रैप पर्सनल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना उसमें यूज़ होता है, ठीक है, जो नॉर्मल मतलब डेवलपर्स अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में बनाते हैं सीखते वक्त। बट जब इंडस्ट्री में काम करोगे कंपनीज़ में, ऐसी कंपनीज जहाँ पे मतलब ऐसा कुछ वेबसाइट वगैरह का लेना देना है, ठीक है, तो वहाँ पे टेलविंड मतलब मैं 80% एश्योरेंस दूंगा कि वहाँ पे टेलविंड ही होगा, ठीक है। बूटस्ट्रैप काफ़ी कम होगा। बूटस्ट्रैप तभी हो सकता है या तो अगर कंपनी न्यू है या फिर है ही नहीं, मतलब दूसरा रीज़न ही नहीं है, ठीक है। तो यही है, मतलब आप लोगों को समझ आ रहा होगा, मैं ज़्यादा फ़ैन हूँ इसका टेलविंड का ज़्यादा, ओके। तो यही चीज़ें हैं। ओके, बाकी किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछो। अभी इसमें कुछ कुछ चीज़ें बच रही हैं जो मैंने बताई थी, रिस्पॉन्सिवनेस हो गया, ये ओवर वगैरह हो गया, ये सब अब हमें नेक्स्ट क्लास में देखना है। और प्रॉपर्टीज़ कुछ कुछ मतलब छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ रह गई होंगी जो हमने सीएसएस में देखे होंगे। ये देखो, जैसे ये देखो, ये डिफाइन कर रहा है ना जेड इंडेक्स को, इसने कस्टम वैल्यू दी 100। तो एक सेकंड रुकना। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये देखो, इसने कस्टम वैल्यू दे रखी है, मतलब 100 वैल्यू दे दी, राइट। कोई और भी अगर आप देखोगे, बट ये सारी चीज़ें हमारी रिएक्ट में, ये यहाँ पे कुछ काम ही नहीं आएगा। टेक्स्ट कलर है, ये लोग कस्टम कलर भी दे देंगे, ये देखो रेगल ब्लू करके इन्होंने कलर दे दिया। अब पूरे अपने मतलब ये कोई फाइल होती है रिएक्ट जेएस में, ठीक है, इसमें तुम अपने चीज़ें डालते रहो, जिसने कलर्स डाल दिए, फिर टेक्स्ट डालते जाओ, ठीक है, फॉन्ट्स डालते जाओ, तो वही चीज़ है, ठीक है। तो ओके, हमें नो डाउट, साक्षी नो डाउट, वेरी गुड। जिसको अच्छा सॉरी मैंने